Great. So a very good afternoon to all. मैं तनुश्री चंद्रा फ्रॉम सैक इंडिया स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचकुला। मैं सभी का स्वागत करती हूँ हमारे माई स्टोरी सेशन में। दिस इज मार्च एंड कई जगहों पे मार्च एंडिंग चल रही है, कॉलेजेस में एग्जाम्स हो रहे हैं, बट हमारे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स, हमारे स्टार्टअप्स लगे हुए हैं अपने बिजनेसेस को ग्रो करने में, हमारे लर्न करने में। और सभी यंग एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपने रिमोट एरियाज में से हमारे साथ जुड़े हैं और अपने एग्जामिनेशन टाइम से अपना टाइम निकाला है टू लर्न आज के एंटरप्रेन्योर से द challenges, how to overcome the challenges, how to keep up with the pace and everything. So I also welcome today's speaker, Ms. Sheetal Joshi, who is from Mumbai, and she'll be sharing her journey with us, right? She is the founder of Food Cravings, and she's the brand ambassador of Country Delight. She likes to be called as mompreneur and a self-employed woman who takes pre-orders for food and delivers completely home-cooked food straight from her kitchen. This is not only one thing she's into also art and craft from around last 20 years. So she has been into various domains and she has achieved a lot of things, but still she likes to be called as mompreneur because she's also a dedicated mom who is busy with her homely challenges and chores. So I welcome you, ma'am, and I really thank you. Thank you for so many good things for you are saying for me. Thank you for that. Right. And I would like to thank SACC also for giving me chance to speak here. I'll try my best. And thank you. I'm very much honored to be here today. Right. So, ma'am, like we know that it is great time to be in India's startup world. It seems like every week we are hearing about the next unicorn that received a huge round of funding. But, somewhere or the other, हम जब भी startups का नाम सुनते हैं तो जो सबसे पहली चीज आती है हमारे दिमाग में, we think there is something startup is related to technology. बट जब हम आप जैसे फाउंडर्स को देखते हैं, आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, दोज हु आर मेकिंग मार्क इन वेरियस अदर फील्ड्स and bringing up different challenges, different things all together. So हमारे भी 5 across हरियाणा हमारे 5 centers हैं जहाँ पे हमारे student entrepreneurs आ रहे हैं and वो अलग अलग domain से अपने startups create कर रहे हैं. So they might not be very big in technology, but they are creating good success stories. So, so to begin with, ma'am, I would like to know कि आप क्या बता सकते हैं अपने background, अपने personal and अपने professional past के बारे में? जरूर मैं बिल्कुल शेयर करूंगी so that कुछ ना कुछ help तो startups के लिए होगी, मुझे ऐसा लगता है. Definitely. तो मैं simultaneously आपको बताती हूँ professional and personal. Right. So I am from a business family. First of all, I would like to tell all of you that I am from a business family, and my father has a business of rubber. So whenever he used to come back from his business, he used to discuss his stories with us. So naturally, that things, when you hear around you, when you hear all that, तो आपके अंदर भी वो चीज develop होने लगती है. So I am naturally entrepreneur. This is not something which I have learned. There are two different things. One is like those who want to be and they learn it and they try hard for that. But this is something which is already, it was inbuilt in me because I was living in such environment. I was learning all that. तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला अपनी फैमिली से. And first it starts from your family only. Then only you move out and you learn. वो तो हम आज भी कर रहे हैं. तो मैं सीखती होती थी, लाइक जब भी माय फादर यूज टू कम, ही यूज टू डिस्कस, मुझे लगता था कि मुझे भी बैठ के पास कुछ डिस्कस करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए. तो मेरे अंदर भी एक इंटरेस्ट डेवलप होता रहा. एंड विल यू बिलीव दैट आई वाज ऑफ देयर एज ओनली, like our startups, like they are in their 20s, around 20s only. So I was of their age only, or maybe younger than them. I started with Eviance. You must have heard that direct selling cosmetics brand was there, Eviance, Avon, Oriflame.
You must have Right. heard about that. I don't know startups they know or not, but I would like to tell you that I started with that first. Oh, And great. that was my purpose was not profit and revenues at that time. So even they should learn that in the beginning one should not look for profits and revenues. Starting में हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सीखने को क्या मिल रहा है, मतलब what are we learning. So at that time I was learning with that, and I learned a lot in that business. Will you believe I'm being commerce student? I have done my BCom, B.Ed. I have done fashion designing also. And being commerce student, I have learned all that ledgers, account maintaining, all that. So there I was learning in the school and college. And there after coming home, I was maintaining also with my own hand. Like I was doing like in that way. तो मुझे अच्छा लगता था कि जो चीज मैं सीख रही हूँ वो मैं इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ साथ साथ. तो वो एक बहुत ही अच्छी, मतलब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम के लिए कि मुझे सीखने को मिल रहा है. एंड इनके बच्चों के पास तो लाइक they are very very lucky, they are very fortunate you are there. SSEC is there for them, you are always there for them, so they don't need to struggle too much in that way. Otherwise struggle is always there in each and every step of our life. बट मेरे लिए ये था कि मुझे खुद ही करना था. मेरे फादर थे, मुझे गाइड कर देते थे, एंड आई यूज्ड टू डू इट. तो आज भी मैं उनसे कुछ भी हेल्प लेना चाहूँ मैं ले सकती हूँ. तो द थिंग इज कि मैं वो करती गई. एंड लेटर ऑन आफ्टर दैट मीन्स एवियंस मैंने स्टार्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की, लेजर्स मेंटेन किए, सीखा. और उसके बाद आई वाज इन आर्ट एंड क्राफ्ट. यू जस्ट सेड नाउ, यू टोल्ड एवरीवन आई वाज इन आर्ट एंड क्राफ्ट. सो आई यूज्ड टू लर्न पॉटरी, पेंटिंग्स एंड ऑल दैट. एंड देन फाइनली मुझे लगा कि मैं अब इसमें भी कुछ कर सकती हूँ. सी द वे आई वाज थिंकिंग, आई वाज सो एंथुसियास्टिक. मुझे लगता था मैं ये भी करूँ वो भी करूँ. And I started with that also. And I started taking classes at home. जब भी holidays, vacations होती थी, I used to learn. And then I used to teach also. I used to call students at my home and I used to teach them. I used to enjoy doing all that. And उसके बाद मैंने ये continue रखा. That's why I say that I have been teaching since 20-25 years. Because मैंने तभी start कर दिया था सिखाना. And उसके बाद मैं ये चलता रहा, मतलब I because I've done B.Ed also, I was in school, I used to teach there also, then I used to come back at home, then also I used to teach. और ये चलता रहा सिलसिला. और उसके बाद now when I am in Mumbai, there I have not joined any job like school and all. I have not done. I was operating from my home only. Art and craft I was doing it. But now this food cravings came. How it came? Now I'll tell you that suddenly when this pandemic came, I had to stop calling students at my home because everything was shut. So businesses were shut. I had to close my hobby center also, and I have to stop calling students. And then I was at home like others. And even for food also, my children, they used to say, Mama, now we can't go out. How can we eat outside food and all that? I thought, why not? I will make it, no problem. And I started cooking a lot. Daily I used to make something or the other new dish, not like normal food which we make. So I think even many other ladies also did the same thing. So I was also doing the same. But then my family was very happy. They were saying that, wow, now we are getting very good dishes to eat. And I used to share pics with my family too. So my sister, my real sister, what she did, she said, Sheeta, why don't you do one thing? Why don't you start it professionally? Now your business is shut. You are not calling your students at home. Why don't you start with this? Because nowadays, all the ladies, they are suffering from work. They are doing a lot of work at home. Maids are also not coming. They are doing so much work, and there is a real need now. They want someone who can provide them home cooked food, hygienic food, and you'll gain a lot of profits also, and you will enjoy your work. Then I liked her idea. And then my family was also after me. No, you should definitely start. One day I prepared that donuts. They were, means I'm praising myself because I have to tell you that everyone liked it so much. They were not less than outside, I'm telling you. And they were everyone was saying it's tasty too and presentable too. So you should definitely go for it now. Then finally I started. Then I gave name this food cravings because we were craving so much for outside food. So I gave it a name, food cravings. And finally, that's how I started my business.
So that's the story. वाओ, ग्रेट मैम, ग्रेट. सो मैम, मुझे लगता है कि यू जैसे आपने मुझे बताया कि यू वर नॉट एक्चुअली एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर, बट ये चीज आप, Not यू वर एन exactly. इनबॉर्न एंटरप्रेन्योर. मतलब आपको Oh, बचपन thank से you ही so चीजों much. का शौक रहा है, Yes, बिजनेस का शौक रहा है, और आपने अपने शौक को किस तरीके से एक बिजनेस में तब्दील किया. वेरी नाइस. सो मैम, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक, what motivated you to keep it going? जैसे आपने बताया कि पैंडेमिक में आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपको आपकी right. फैमिली एंड फ्रेंड्स ने भी बताया, बट आज भी अगर आप उस चीज को कर रहे हैं तो उसमें आपकी मोटिवेशन क्या थी? व्हाट कीप यू गोइंग, व्हाट केप्ट यू गोइंग? See, motivation automatically comes when people praise for you. See, this is Right. something which is like you are appreciated. That means मुझे लगा कि अगर सबको खाना अच्छा लग रहा है और अगर मुझे repeat orders मिल रहे हैं, तो that means कि there is something good in my food and I should continue it. और मेरे को the main thing is like if you work with passion, you don't work with pressure. That is the best thing. Right. मुझे शौक भी है और मैं वो काम कर रही हूँ और मुझे उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, तो मेरे लिए ये मोटिवेशन है. मेरी फैमिली है, सब मुझे मोटिवेट करते हैं. माय हस्बैंड, माय किड्स, माय सिस्टर, माय पेरेंट्स, दे ऑल मोटिवेट मी. तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से भी मुझे अच्छे फीडबैक्स मिलेंगे और जो कि मुझे मिलते रहे, एक्चुअल मुझे मिलते रहे फीडबैक्स. एंड जो मुझे फीडबैक्स मिले दैट मेड माय डे. मुझे लगा कि आज तो मेरा दिन बन गया, आज तो इतने अच्छे अच्छे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, एंड दैट कीप मी गोइंग. And so I am still doing it. मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. That's the reason. ओके. सो मैम, आपने मेंशन किया कि जब तारीफें आती हैं तो अपने आप आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है, आपको और आगे बढ़ने का मन करता है, आपको और खुद को प्रूफ करने का मन करता है, राइट? सो मैम, व्हाट वुड यू से टू द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग? क्योंकि देखिए, इनके पास ना रिसोर्सेज हैं ज्यादा, मतलब they are students, basically they are students from our colleges, government colleges. तो ये पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हैं, बिकॉज दे कम विद एन आइडिया, दे कम विद बेसिक आइडियाज. सो आप हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को गाइड कीजिए कि what should they look into when they are starting with their business or when they are growing their businesses? तो किन किन एलिमेंट्स पे उनको ध्यान ज्यादा देना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि इनका ध्यान ना कई जगहों पे बढ़ जाता है, पढ़ाई भी करनी है, फैमिली को भी खुश रखना है. तो हाउ वुड यू टेल देम, व्हाट वुड यू टेल देम? अभी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने स्टार्टअप से कि इन्होंने ये जो सोच रखी है ना कि हमें ये काम करना है, दे आर विनर इन देमसेल्व्स. ये इनकी सोच ही बहुत जरूरी चीज थी जो इनके अंदर आनी चाहिए थी, और वो ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि इनको आगे लेकर जाएगी. अभी मैंने बताया ना आपको कि वर्क विद पैशन नॉट प्रेशर. बिल्कुल भी प्रेशर तो लेना ही नहीं चाहिए इन चीजों का, क्योंकि अगर आप प्रेशर लोगे ना तो वहां स्ट्रेस आएगा, और जहां स्ट्रेस आएगा वहां काम तो होगा ही नहीं. तो आपको ये काम बहुत ही इंजॉय करते हुए विद इंटरेस्ट करना होगा. मीन्स अभी मुझे नहीं पता, मैंने सुना बहुत है SSCC के बारे में, मैंने आई हैव हर्ड अ लॉट कि आप बहुत ज्यादा मतलब साथ हो इनके, यू आर ऑलवेज सपोर्टिव, गाइडिंग देम ऑल द टाइम. तो इनके पास तो बहुत अच्छी सपोर्ट है आपकी कि ये तो कभी घबरा ही नहीं सकते लाइक सिचुएशन में. इनको तो हमेशा पता है कि आप इनके साथ खड़े हो, और ये कहीं भी जाएं आप इनको सपोर्ट कर रहे हो और ये काम कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर क्या है. मुझे लगता है इनको तो बिल्कुल टेंशन किसी चीज की होनी नहीं चाहिए. और एलिमेंट्स जो आप कह रहे हैं इनको ध्यान में रखने चाहिए. सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज देयर प्रोडक्ट. दे शुड चूज देयर प्रोडक्ट वाइजली. पहले तो उनको उस प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन फर्स्ट दे हैव टू बी कंज्यूमर. दे उनको पता ही है कि ये जो भी चीज सेल कर रहे हैं ना, सबसे पहले इनको खुद वो चीज यूज करनी है. अगर ये चीज वो यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में चले जाएंगे और खुद को पता भी नहीं है अच्छे से, और जस्ट फॉर द मोटिव कि हमें तो पैसा कमाना है, और ये चले जाएंगे मार्केट में बेचने के लिए, तो ये बेच नहीं पाएंगे. द थिंग इज फर्स्ट दे शुड लर्न कि हमारा जो प्रोडक्ट है, कुछ भी हम सेल कर रहे हैं, वो किस तरह का है. और वो तभी हो सकता है जब कंप्लीटली उस प्रोडक्ट को ये खुद यूज करेंगे. तो इनको यूज करना चाहिए अच्छे से पहले, और फिर उसको सेल करना चाहिए. देन दे कैन at least convince others also that we are already using it and see how is the result,
and you can, others will also see that they are also using it. That's good. That means they are having good results. That's why they are selling it. Right. Right. That is the main thing which they should keep in their mind, that they should be consumer first. वाओ, सो बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से आपने इनको बता दिया कि किस तरीके से कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करें, कि पहले तो खुद इस्तेमाल करें, खुद अपने प्रोडक्ट्स को समझे एंड फिर मार्केट में लेके जाएं और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएं और कंज्यूमर के फीडबैक्स पे काम करें. तो मैम हमारे पास कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं, हमारे 5 सेंटर्स में ही ना आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत स्टार्टअप्स हैं. सो आप उनके लिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि मैम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो या तो मैम बहुत कम प्राइस पे बिकते हैं या उनका मार्केट नहीं बन पाता. सो आप इसमें थोड़ा सा उनको गाइड कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव वेरियस स्टार्टअप्स इन पॉटरी, इन पेंटिंग, इन आर्ट, इन मंडाला. मतलब आप बताइए, आप नेम कीजिए और हमारे पास 5 सेंटर्स में से कोई ना कोई ऐसा स्टार्टअप निकल आएगा जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है. सो आप उनको कैसे गाइड करेंगे? बिल्कुल. पहले तो मैं ये कहूंगी कि आर्ट एंड क्राफ्ट, देखो देयर आर टू थिंग्स. One is like if they are selling their paintings, the way you said that pottery and all, if they are selling all that. And one is service, that if they are teaching like hobby classes kind of, if they are teaching if they have a skill that if they can draw well, and then if they're teaching, that is different thing. So I don't know about your startup that they are into what means. I'll tell you both, but no problem. In case they have a skill, then so it's very easy. They don't have to invest also. They don't have to put any capital. They can just teach, sit at home also, and they can teach. But if they are selling outside, then naturally they have to come outside in the public. So exhibitions helps, going door to door sometimes helps. Online is in so much trend today that they should put their paintings and everything online, maybe with the help of Amazon, maybe with help of any other site. They can open up their WhatsApp groups. Nowadays, this is also helping a lot. And they can sell that way. And stalls and all, I think you are already doing all that for them. Yes, ma'am. So they can open up their stalls. They can go there. And network is like, they shouldn't worry for that at this age, I'll say. Because अभी तो beginning है. अभी तो नाम बनाना है ना. तो अभी तो हम start कर रहे हैं ये काम. जब धीरे धीरे अपनी पहचान बनेगी, तो अपने आप आज 4 जाने हैं, फिर 8 होंगे, फिर आगे आगे और ज्यादा 12, मतलब ये तो इंक्रीज होता रहेगा, हंड्रेड्स. एंड इस तरह से इनका नेटवर्क बनता जाएगा. अभी तो इनको अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में देना है. देन लेटर ऑन, उसके बाद एरिया, देन सिटी, देन स्टेट्स, कंट्री, लाइक दैट. फिर तो ये आगे बस राइज ही करते जाएंगे. और अपना प्राइस भी जो है अकॉर्डिंगली रीजनेबल. स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते बिकॉज यू हैव नॉट अर्नड योर नेम. तो अभी आपको स्टार्टिंग में प्राइस भी उसी अकॉर्डिंगली रखना होगा. धीरे धीरे आपका नाम जब आ जाएगा और उसके बाद आप फेमस हो जाएंगे, फिर आप जिस मर्जी प्राइस पे दीजिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो मैं खरीदूंगी आपसे. बिल्कुल मैम. सो मैम आपने जैसे ये प्राइस का मेंशन किया, तो हमारे कई बार स्टार्टअप्स में और जो यंग बच्चे हैं उनमें यही क्वेश्चन आता है कि मैम प्राइसिंग कैसे सेट करें. राइट. तो प्राइसिंग मैम आपने एक एलिमेंट तो बता दिया कि अभी आपका नेम नहीं है तो यू कैन. सो मैम और कौन कौन से एलिमेंट्स पे इनको ध्यान देना चाहिए जब जैसे आप भी अपने सर्विसेज देती हैं या जब आप अपना फूड वो करती हैं, तो आप किस तरीके से प्राइसिंग को सेट करती हैं? मतलब आप इनको किस तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से प्राइसिंग को सेट करना चाहिए? यस, लाइक अब जैसे मैं अपना फूड देती हूँ तो उसमें मेरा बहुत ही मिनिमम रहता है. द थिंग इज कि मैंने, आई टेल यू, when I started it up, in the beginning, मैंने सिर्फ और सिर्फ, will you believe that I spent my money only on the packaging. मुझे कुछ भी वेजिटेबल्स या उस पर स्पेंड करना नहीं पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा नहीं होती. आपको लगता है पता नहीं ऑर्डर आएगा भी या नहीं, और अगर आएगा भी तो कितना आएगा. हार्डली 2 plates, 4 plates, 6 plates, not more than that, because in the beginning you don't spread too much. I only took order from my own society at that point of time. और अभी मुझे 2 years ही हुए हैं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ. मैंने ये पैंडेमिक में ही स्टार्ट किया है. And now will you think that I am getting orders from outside also, from other areas also.
सो आई एम डूइंग सो वेल। वो मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया था, मैंने बिल्कुल कैपिटल नहीं लगाई थी कुछ भी एक्सेप्ट पैकेजिंग, हार्डली 300-400 रुपीज, विल यू बिलीव दैट? एंड मुझे जैसे ही ऑर्डर आया, आई टेक प्री ऑर्डर्स, इट्स लाइक दैट। प्री ऑर्डर्स आर लाइक, प्री ऑर्डर्स ये होते हैं कि आपको ऑर्डर पहले लेना है, उसके बाद ही कुक करना है अकॉर्डिंगली, उसके बाद ही आपको खाना बनाना है, उसके बाद ही आपको डिलीवर करना है। सो वन शुड नो, मतलब बाकी सबको पता होना चाहिए कि आज ये बनेगा। लाइक आई स्टार्टेड विद राजमा चावल फर्स्ट। तो मैंने क्या किया तो मैंने राजमा चावल का ऑर्डर लिया एंड आई क्लिक वेरी गुड पिक्चर्स, वेरी टेम्पटिंग पिक्चर्स, बहुत उसको अपनी तरफ से आई पुट माय हार्ट एंड सोल इन दैट एंड आई टुक ऑर्डर्स फॉर दैट। और मुझे 4 प्लेट्स, आई रिमेम्बर, मुझे 4 प्लेट्स का ऑर्डर आया था, जो फर्स्ट ऑर्डर आया था। और मैंने कुछ बाय नहीं किया था, क्योंकि आप बताइए, खाने के लिए घर में सब कुछ किचन में ऑलरेडी ये सब कुछ हमारे होता ही है ऑलरेडी। हाँ, कि अगर बाई चांस ज्यादा ऑर्डर जाएगा, आई टुक 2 days फॉर दैट। मैंने 2 days बाद डिलीवरी देनी थी, मेरे पास टाइम था, मैंने स्पेंड ही नहीं किया। मुझे लगा कि अगर ऑर्डर नहीं आएगा, व्हाई शुड आई वेस्ट माय मनी। और मैंने उसी अकॉर्डिंगली ऑर्डर लिया। जैसे ही मुझे ऑर्डर आया, मेरे पास ऑलरेडी घर में इतना तो था, एंड आई मैनेज एंड आई अर्नड, एंड दैट मनी आई केप्ट इट सेपरेटली। दैट वाज माय मनी फॉर माय बिजनेस ओनली, आई टुक इट दैट वे। और इस तरह से मैं इंक्रीज करती रही, इंग्रेडिएंट्स लेती रही, अपने बाय करती रही, एंड सो I did it. I flourished after that. ग्रेट। सो मैम, मुझे लगता है कि यू आर बिकमिंग एन इंस्पिरेशन, यू नो, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ही ग्रास रूट लेवल से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो आपने इनको सच में एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन, एक एग्जांपल दिया। एंड आपने ये भी बताया कि किस तरीके से जो मनी आपके बिजनेस से आ रहा था, उसको आप वापस बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रही थी। Right. I think, guys, this is the biggest takeaway for today कि जो भी आप बिजनेस से कमाएं, जो भी आप बिजनेस से अर्न करें, प्लीज ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू योर बिजनेस। मतलब आप उसी से ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि Starting में तो इनिशियली इनको आपको ऐसे ही यही करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। यस। सो मैम, ये तो था आपका सक्सेस का, बट अगर आपके पूरे इस जर्नी में आपने कोई चैलेंज फेस किया, व्हाट वर द चैलेंजेस एंड हाउ यू ओवरकेम देम? Yeah. Challenges are like you face. Otherwise, also we face that in each and every step of our life. आपको नहीं लगता है चैलेंज तो हमें हर जगह मिलता ही है, तो आपको उसको कैसे फेस करना है, यू हैव टू मीट इट वेरी ग्रेसफुली। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, माय बिगेस्ट चैलेंज वाज दैट हियर देयर इज वेरी कंपटीशन ऑफ फूड, लाइक द वे आई एम डूइंग इट। तो यहाँ पे लाइक देयर आर मेनी वुमेन दोस हु आर ऑलरेडी इनटू इट। सो एट दैट टाइम आई वाज लिटिल मीन्स कंफ्यूज कि मेरा बिजनेस चलेगा भी या नहीं, मीन्स कोई मुझसे खाना लेगा भी या नहीं। बट एट दैट टाइम आई हैड टू थिंक, द चैलेंज वाज कि मेरा ले मीन्स मेरे पास जरूर आए, ट्राई जरूर के, बिकॉज आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि एक बार अगर खा लिया ना, देन दे विल लाइक इट, आई वाज श्योर। सो मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिससे कि मेरे पास कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट हो। सो व्हाट आई डिड, यू हैव टू मूव लिटिल बिट डिफरेंटली इन दैट वे। तो मैंने क्या किया, द अदर्स वर लाइक they were having expertise in one thing only, like those who were selling momos, they were expert in momos. Those who were selling pizzas, they were expert in pizzas. Those who were selling some other food like rajma chawal or chole bhature, they were expert in that, and they were giving that food only. But mine is like I was providing them variety. Those who don't eat this rajma chawal, those who are not, those who are here in Mumbai and they are not North Indian, वो North Indian नहीं है, वो अगर राजमा चावल खाते ही नहीं है तो आपसे कैसे लेंगे, they will not come to you. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने में ऐसी वैरायटी रखी ताकि सब रीजन्स का फूड कवर हो जाए। उससे क्या होगा, मेरे पास मैक्सिमम कस्टमर्स आएंगे। नेचुरली जिसको राजमा चावल पसंद नहीं है वो पिज्जा खाता होगा, पिज्जा नहीं खाता होगा तो मोमोज खाता होगा, मोमोज नहीं खाता होगा तो मे बी चाइनीज खाता होगा ना, साउथ इंडियन खाता होगा, कुछ तो खाता होगा। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने एक एक, जैसे देयर आर 7 days, सो मंडे को मैंने डिफरेंट फूड, ट्यूसडे को डिफरेंट, वेडनेसडे डिफरेंट, दैट वे आई केप्ट माय मेन्यू। सो आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स, बिकॉज जो वैरायटी मेरे पास थी वो शायद किसी के पास नहीं होगी। तो मुझे इस तरह से एक आइडिया डिफरेंट, कुछ ना कुछ तो हटकर आपको करना ही है ना, देन ओनली द अदर्स विल कम टू यू। अदरवाइज तो आप सबके साथ जैसे एक जैसे ही हैं, तो फिर तो कुछ आप स्पेशल नहीं कर रहे ना। तो यू हैव टू मूव 1 step अहेड, आपको कुछ तो डिफरेंट करके आगे जाना है, आगे बढ़ने के लिए। So that is the thing. सो वेरी क्लियरली ये आपने बताया स्टार्टअप्स को कि आपने पहले एक प्रोडक्ट बनाया,
एंड धीरे धीरे जब इनिशियली आप स्टेजेस पे चलते रहे, आपने फीडबैक्स देखे, आपने लोगों का रिस्पॉन्स देखा, एंड अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर सेगमेंट्स आपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करना स्टार्ट किया और न्यू प्रोडक्ट भी अपने लाइन में आपने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, सो दैट आपको यस आपके जो चैलेंजेस थे वो भी ओवरकम होते गए। सो मैम जो हमारे सबसे बड़ा हमारे बच्चों का जो चैलेंज होता है, दैट इज दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर से नेगोशिएट करना है या कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशन है, उसको किस तरीके से वो ओवरकम करे या नेगोशिएट करे। मतलब आपके पास कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया वेर यू हैव टू डील अ वेरी डिफिकल्ट कस्टमर और अ क्लाइंट, एंड आपने उसको कैसे हैंडल किया? यस, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सभी अपने स्टार्टअप्स को कि एक्सेप्टेंस की आदत डाल लो फॉर क्रिटिसिज्म टू। हम लोग हमेशा प्रेज के पीछे भागते हैं, हमें लगता है कि हमारी चीज अच्छी लगनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है अच्छी हो भी, बट किसी का लाइक अब जैसे मेरा फूड है, मे बी किसी का टेस्ट डिफरेंट हो, उसे नहीं अच्छा लगता, मे बी मेरे फूड में जो नमक हो, मे बी उसे ज्यादा सॉल्ट पसंद हो, इट कैन हैपन। मैम जस्ट वेट, आपका ना म्यूट हो गया, एक मिनट, जस्ट वेट, somebody else was speaker, I'll unmute you. Yeah, okay, yes, I think it's fine now. Yes, please. तो acceptance of criticism is the right quote for that, कि आपको क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि अगर आपके फेस पे आएगा ना कि आपको किसी ने कहा है कि ये चीज अच्छी नहीं लगी, हमें हमारे टाइप की नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट है आपका, जैसे मेरा फूड है, अगर किसी को अच्छा नहीं लगता, अगर कोई कुछ कह देगा, वैसे टचवुड आई हैव नॉट फेस दैट, बट आई नो दैट हाउ आई विल रिएक्ट, कि अगर इस तरह से कोई मुझे बोलेगा कि मुझे ये फूड पसंद नहीं आया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन ट्राई समथिंग एल्स। आपको वो जो स्माइल है ना आपके फेस पे, उसको नहीं लेके जाना है, वो स्माइल आपके फेस पे हमेशा रहनी चाहिए, और आपको उसकी क्रिटिसिज्म को भी बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा, जो कस्टमर है, मैंने बहुत सी जगह पे देखा, हम जाते हैं मार्केट में जाते हैं, अगर हमें नेगोशिएट हम कर रहे हैं, अगर कोई बिल्कुल अड़ जाता है एकदम कि नहीं हमें तो लेस नहीं करना है, यू डोंट फील लाइक बाइंग फ्रॉम देयर, इवन इफ आपको आगे जाके शायद ज्यादा ही पे करना पड़े। इट हैपन्स कि हम लोग नेगोशिएट कर रहे होते हैं और उसका फेस देख के, बिकॉज वो इतना ज्यादा इस चीज के पीछे है कि हमें तो लेस नहीं करना है, और उसकी स्माइल नहीं है फेस पे, उसको बात करने का ढंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम आगे चले जाते हैं, हम उससे कभी बाय नहीं करेंगे और हम आगे जाके ज्यादा पे कर देंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें क्या करना है, हमें अपनी स्माइल को रखते हुए उसकी बात को सुनना है। अगर आपको सूट करता है, अगर आप उसको दे सकते हैं तो दीजिए, अगर नहीं भी दे सकते तो उनको फिर भी आपको यही बोलना है कि आप कभी आइए, कभी और हम देखेंगे, अभी इस प्रोडक्ट में तो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको बात करनी है, मीन्स एक एक्सेप्टेंस के साथ। ये नहीं है कि आप हर एक को बस अपनी ईगो दिखा के और उसको जाने को बोलेंगे। तो आपको बहुत ही हैप्पीली अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ डील करना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी। Wow, very nice. So it's really nice to hear that कि जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप फेस करती हैं, आपने बच्चों को बहुत इजीली सिंपल लैंग्वेज में बताया, एंड यस शिखा मैम आल्सो प्रेजेस यू, वेल सेड मैम। सो मैम द बिगेस्ट थिंग जो हमने देखा है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एक और जो सबसे बड़ा है वो फंडिंग का होता है। मतलब दे थिंक दैट अगर मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, या क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। सो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू से इन दैट? See, as far as I know, that still they are having some kind of help from SACS. They can pitch here and they can take some advantage of you also. But what I will suggest, otherwise, what I will suggest, जो मैंने किया, start from minimum. Don't put too much capital in the beginning. आप अपने बिजनेस से ही अर्न करिए और फिर उसमें डालिए। ये टेक्निक मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ना, कि आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। देयर आर मेनी पीपल दोज हु थिंक विल बी वेरी शोई, एंड हम तो ऐसा फ्लैशी सा बना देंगे एंड पीपल विल कम टू अस, में उनको अट्रैक्टिव लगेगा, दे विल डेफिनेटली कम बिकॉज इट विल लुक वेरी फ्लैशी।
उनको लगेगा बहुत अच्छे से ये चीज हमारे सामने, इसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है, शायद ये प्रोडक्ट बहुत, बट आफ्टर ऑल दे विल यूज इट और नॉट। आपका प्रोडक्ट अच्छा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको बहुत ज्यादा शोई नहीं बनना है इन द बिगनिंग। बाद में जितना मर्जी करना, आपके पास पैसा आ ही जाएगा, आप अर्न करेंगे, उसके बाद आप जितना मर्जी करिए, लेकिन इन द बिगनिंग डोंट वरी फॉर द फंड टू मच। आपको बहुत ज्यादा डालना ही नहीं चाहिए, कीप इट टू द मिनिमम एंड स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। फर्स्ट लुक फॉर द रिस्पॉन्स। अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, इफ यू आर डूइंग सो वेल, आपको ऑलरेडी नॉलेज है एंटरप्रेन्योरशिप की, आप अच्छे से बात कर सकते हैं, लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड। आपको ये नहीं है कि आप लैंग्वेज को कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं हमें तो इंग्लिश में ही बात करनी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको आप जो भी लैंग्वेज चूज करते हैं, बस बात स्माइल के साथ करिए, अच्छे से करिए, डिसेंट वे में करिए, आपके पास हर कोई आएगा आपके प्रोडक्ट के लिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप जितना मर्जी उसको और ग्रोथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेटर ऑन। एक बार आपको ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। वेल सेड मैम, वेल सेड। हमारे इवन चैट बॉक्स में भी काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे। सो मच इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पिरेशनल सेशन, थैंक यू। एंड अंकित सेज, यस अंकित, जो मैम ने बताया, यस दैट्स ट्रू, बूटस्ट्रैपिंग, कि आप शुरू में अपने ही फंड से स्टार्ट कीजिए, अपने ही रिसोर्सेज से स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 जब आप ग्रो करेंगे, जब आप बिजनेस में आपका जब पैसा आएगा, आप उसको ही दोबारा से अपने बिजनेस में डालें। एंड देन यू हैव पीपल, देन यू हैव कम्युनिटी लाइक SACC, यू हैव अदर कम्युनिटीज, अदर नेटवर्क्स, बैंकिंग नेटवर्क्स हैं, अब बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं, and you will start flourishing. So well said ma'am, very well said. So ma'am, before going to the audience for question and answers, I'll just start with a small rapid fire here. So ma'am, aapki who is your inspiration? My inspiration is like my father. Why so? Because whenever you talk about inspiration, first of all it comes from your family only. And later many people inspired me from outside also, but the first person was my father. Great ma'am, great. So ma'am, any two quotes that help you to overcome the stress of your work? Yeah, quotes, if you will say one, you can say whenever you are in stress, whenever you feel that things are not going according to you, one thing you do, follow it. Listen to me carefully. Just say, all is well, all is well. In your heart. Great. Have you seen the idiots? So you can say, all is well, all is well. Everything will. You have to make it understand that yes, everything will be fine. So Great. this is the one quote. And the other one, what I think is each and every person is unique. Don't you think so? If you compare yourself to someone else, like I can see the names, if Sahil will compare him with Muskan, yes, things will be tensed. You will feel that maybe the other person is going far better, I am not doing it, and you will be in stress and you will not able to perform better. So what you should think is that each and every, when I say each and every person is unique, I mean to say that हर एक का काम अपनी जगह अलग है. अगर आप कंपैरिजन में लग जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. आप मान के चलिए आपका काम हमेशा अलग ही रहेगा बाकियों से, क्योंकि आप अलग हैं, आपकी एक अलग आइडेंटिटी है. तो जब आप अलग हैं तो आपका काम भी तो अलग होगा ना. अनटिल एंड अनलेस आप किसी का कॉपी कर रहे हैं, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तब तो वो डिफरेंट हो नहीं सकता. अगर आप ओरिजिनल अपनी चीज सामने ला रहे हैं, अपना स्टाइल अपना रहे हैं, देन यू आर यूनिक. आपका काम हमेशा अलग रहेगा और वो सराहा भी जाएगा. हर कोई उसको पसंद भी करेगा फिर. Very nice, ma'am. So, ma'am, which is the last book you read? Book reading, I am really out of it. I don't have time to read. Last, will you believe, I read the book on pregnancy when I was pregnant. Oh, that was quite I would rather prefer to watch some information video like that. That I will do. So मैम, आप भी हमारे यंगस्टर्स की तरह ही हैं जो वीडियोस पे ज्यादा फोकस करते हैं. आजकल ट्रेंडी है. Reason, you know, there are. But I don't want to discourage them. Reading is very, very good if they do it. It's very, very good. I am not doing it. I can't take out time for that. But if they're doing it, it's really good.
So, ma'am, our next question, rapid fire question is, what is the best thing pandemic taught you? Life is unpredictable. Anything can happen anytime. So you should live your life to its fullest. Aaj enjoy kar lo. You never know what tomorrow will come. Today is the time when you can do your best. Great, great. So, ma'am, what do you do for overcoming your boredom? I don't have any room of boredom, Tanushree. Really. I don't have that much time to get bored. There is so much to do. There is no scope of any boredom. The day ends, but my work doesn't end. So there is no chance, no boredom. Wow, ma'am, now I can totally agree to your word, mompreneur, that I am a true mompreneur, Tanushree. And you know, I think each and every mom knows, and each other, that how we are managing our house. Dealing, yes, ma'am, definitely. So, ma'am, last question. What are the qualities and skills you look for in an entrepreneur? Qualities, I would say there are many. There are too many. Your session will end we can't, means there are, I'll tell you 3-4 which we can discuss. The first thing is that your physical appearance, which is very important. Maybe later on it doesn't, but the first impression should be good. You see, if one person is selling something with a torn t-shirt and in a very casual attitude, the other person will say, अभी खुद तो अच्छे से आप वो नहीं हो, आप क्या कमिटमेंट्स दोगे, आपका तो अपना आपको नहीं पता, आप किसी को क्या कमिट करोगे किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, मालूम नहीं, अगर ये खुद ऐसे हैं तो पता नहीं इनके प्रोडक्ट्स भी कैसे होंगे. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. आपको खुद को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, नॉट टू मच आई एम सेइंग, बट इतना दिखना चाहिए एटलीस्ट वन कैन लुक बिहाइंड एंड लिसन टू यू दैट दिस पर्सन इज एक्सेप्टेबल. मींस इसको हम देख रहे हैं, प्रेजेंटेबल दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है, हम इससे बात कर सकते हैं. एटलीस्ट ये चीज तो सबसे पहली चीज है एंटरप्रेन्योरशिप में. देन योर कॉन्फिडेंस, आपको अपने आप पे, यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ. कुछ भी कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है कि हम अच्छे से कर रहे हैं अपना काम, तो देन देयर इज नो टेंशन. आप अपना काम करेंगे, आपको जरूर एक वो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद. क्यों? क्योंकि आपने अपनी जान लगा दी उसमें. तो एक वो अपने पे एक बिलीफ होना जरूरी है कि हम कुछ कर सकते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन व्हाट एल्स? देन सपोर्ट ऑफ फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हमारी फैमिली सपोर्टिव है, देन वी कैन गो फार फार, मीन्स to a great extent we can go. But if our family is not supportive, then there are many opportunities which we can't take it. अगर आपके पास कुछ भी किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी कि हाँ यस गो अहेड एंड डू इट, देन यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट माय फैमिली इज विद मी. अगर कुछ नहीं भी ठीक होगा तो कोई बात नहीं, बट आई शुड ट्राई इट. और ट्राई करने से ही आपको पता चलेगा ना आप सही कर रहे हैं या नहीं. तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कि आपको एक सपोर्ट भी अपनी फैमिली से मिलनी चाहिए, जो कि ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके हाथ में नहीं है शायद, बट अगर आपको सपोर्ट नहीं भी मिलती है तो जो एक विश्वास आपके अंदर है वो आपको नहीं खोना है. क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं और काम को अच्छे से करते हैं तो आपकी फैमिली धीरे 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 आपको सपोर्ट करने लगेगी. मे बी इनिशियली अगर नहीं भी कर रही है तो बाद में उनको भी लगेगा कि यस माय चाइल्ड इज डूइंग वेल, या माय हस्बैंड इज डूइंग वेल, या माय वाइफ इज डूइंग वेल. तो वो भी आपको धीरे धीरे सपोर्ट करने लगते हैं. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच यू शुड हैव. Wow, very nice. So now, ma'am, we would go to the next level of our interaction today. That is question answers from our audience. So I have received one question in the chat box. हमारे पंचकुला center में, ma'am, we have various startups from the various domains. So one is a very new startup which is YS Chatkara. तो इनका पिकल का स्टार्टअप है. इन्होंने अपना होममेड प्रेजर्वेटिव फ्री पिकल्स बनाते हैं. इट इज अ मदर एंड सन डियो, बेटा और माँ मिलके. हाँ, हमने माँ और बेटी का तो कॉम्बिनेशन बहुत सुना है, बट यहाँ पे बेटा और माँ मिलके बनाते हैं. दे आर रियली गुड इन इट. सो मैम, ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ पिकल इंडस्ट्री. फ्यूचर like first of all kudos to you that you both are together. फ्यूचर क्या, मुझे तो लगता है प्रेजेंट ही अभी इतना अच्छा है
तो आगे ब्राइट ही होगा फ्यूचर। अभी पिकल्स आर लाइक फेवरेट ऑफ ऑल। मैं खुद खाना नहीं खाती पिकल के बिना। एक जार तो आप मुझे ही भेज दो। Great. So, Yaman, I would like to tell you that you have one fond customer here sitting, and who is not only from here in Haryana, but from straight away Mumbai. So, ma'am, we are really privileged that आपने ये फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट बिकॉज प्रेजेंट ही इतना अच्छा है। बिल्कुल। फ्यूचर की टेंशन इसमें तो ले ही ना बिल्कुल। तो मैम एक चलते जाइए। मुझे लगता है इनका एक और क्वेश्चन, मतलब जो मतलब जैसे हम लोग इनके इस पे काम भी कर रहे हैं, सो मैं एक फॉलो अप क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी कि मैम अभी जैसे ये पिकल बना रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि इन व्हाट बिजनेस मॉडल शुड ही गो, मतलब शुड ही go to direct selling to the big businesses like B2B, or should he be sticking to B2C, मतलब direct to customer or business to customers? इनिशियली मुझे लगता है डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ डील करना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको एक अपनी पहचान अभी बनानी है। तो अगर ये अपने नाम से देंगे तो इनका एक अपने आप ही नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद तो लोग आपके पास आते हैं। सक्सेस कम टू यू, यू डोंट हैव टू रन आफ्टर सक्सेस। उसके बाद तो सक्सेस अपने आप ही आपके पास आएगा, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। सो क्योंकि मैम मुझे लगता है कि इसमें क्वालिटी, आई मीन टेस्ट बहुत मैटर करता है, राइट? फूड में, फूड इंडस्ट्री में टेस्ट का बहुत बड़ा एक रोल है। एंड जो मुझे लगता है कि कस्टमर्स के डायरेक्ट फीडबैक से ही ये, जैसे आपने भी अपने उसमें मेंशन किया कि आपको व्हाट हेल्प्ड यू कीप गोइंग वाज द कस्टमर फीडबैक एंड द वे रिस्पॉन्सेस केम टू यू, राइट? सो गुड। सो यमन, इफ यू आर लिसनिंग, सो मैम ने बोला है कि आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा है, तो फ्यूचर की तो आप चिंता ही मत कीजिए। एंड दूसरी बात ये है कि आप कस्टमर्स से पहले जुड़े, उनसे engage कीजिए, उनसे feedback लीजिए, and then so other participants here can also ask the questions. So मैम हमारे आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पांचों सेंटर्स में से करनाल में भी फूड, सॉरी हिसार में भी पिकल से रिलेटेड एक स्टार्टअप है, रीमास पिकल करके है। हमारे गुरुग्राम में एक फूड स्टार्टअप है स्वाद करके। हमारे फरीदाबाद में भी एक फूड स्टार्टअप है जो ड्रिंक्स एंड स्मूदीज बनाते हैं। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट दे आर देयर इन फरीदाबाद। अपने आप आने लगेगा, अपने आप तनुश्री आने लगेगा याद। जब उनका नाम आगे जाएगा तो अपने आप आने लगेगा। जीरो करके है, यस यस। सो दे आर ऑल्सो मेकिंग देयर ओन स्मूदीज, ओन ड्रिंक्स एंड यस। तो वो काफी ये हमारे जो अलग अलग सेंटर्स में से ये फूड रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। So yes, the Zero restaurant, Akash ने बताया, Akash is from the Faridabad center. Yes. So any other questions from the audiences? We are waiting. We are here with ma'am. Yes, and Anupam Pickles. Yes, हमारे एक और pickle है जो करनाल से है. Yes, I missed करनाल. तो Anupam Pickles. तो हमारे I wish good luck to all of them कि बहुत ही ज्यादा आगे जाएंगे, और उम्मीद है जाएंगे भी, क्योंकि आपके साथ भी कनेक्टेड हैं, SSCC भी है आपके साथ। एंड इवन अगर आप मेरा भी नंबर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी हेल्प इफ आई कैन प्रोवाइड, आई विल बी देयर फॉर यू। If I don't pick up the phone, you can message me. No problem, I'll get back to you. Yes. मैं भी यही बताना चाहूंगी कि मैम is quite busy, so it's better that आप एक बार मैम को मैसेज ड्रॉप इन करें and then you connect with her. So मैम, राहुल asked कि मैम how to build a brand. Yes. मीन्स क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे नहीं हुई इसमें, आप थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली? Rahul, if you can unmute yourself and ask the question. Rahul, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड आप पूछिए। हेलो मैम, वेरी गुड आफ्टरनून राहुल। यस, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू नो, मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं? ब्रांड किस तरह से आप कह रहे हैं? मींस अपना, आपने कोई नेम ऑलरेडी है आपका जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे? यस मैम, बेसिकली मेरा जो है स्टार्टअप है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराना है, मतलब एक बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस पे लेके जाना। मैं कई क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा होता हूँ, तो उनका प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में बिक भी रहा है,
बट जो एक ब्रांड होता है उसको ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि हाँ जैसे कि कोलगेट एक पेस्ट टूथपेस्ट है लेकिन रिप्लेस हो चुका है उससे, तो एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरीके से हम लेवल बाय लेवल आप मीन्स अपने आप को फेमस किस तरह से कर सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? एक वेल कि नोन मतलब एक ब्रांड अपना कैसे नेम build कर बनाना सकते चाहते हैं कि यस मैम। मार्केट में सबको एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आपका ये प्रोडक्ट है, यस मैम, ये यस आपके नाम से बिकता है, दैट वे यू वांट टू। ओके, यस यस मैम, मैम। ब्रांड रिकॉग्नाइज हो जाए। दैट इज यस विद द नेटवर्किंग ओनली। आपको नेटवर्क बिल्डअप करना ही होगा, क्योंकि जैसे सी सोशलाइजिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट। आपको इतना सोशलाइज करना पड़ेगा, आप घर पे बैठे नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन पब्लिकली भी आपको यू हैव टू स्टेप आउट, और आपको अपना ब्रांड सबको दिखना चाहिए। यू हैव टू कीप ऑन नॉकिंग, सबके दिमाग में इतना आ जाना चाहिए, इतना ज्यादा आ जाना चाहिए, जैसे विद एडवर्टिजमेंट्स, विद बैनर्स एंड ऑल दैट। मीन्स आप बाहर जाइए, निकलिए, और थोड़ा सा उसको नेटवर्क इस तरह का बिल्डअप कर दीजिए ताकि सबको पता चलने लग जाए कि ये आपका ब्रांड है और आपके नाम से बिकता है। उसके लिए आपको फेमस ही होना होगा। आप फेमस तभी होंगे जब आप धीरे धीरे करके नॉकिंग करते रहेंगे डोर पे, सबके दिमाग में आपका आता रहेगा नाम बार बार, तो अपने आप फेमस हो जाएंगे और आपका ब्रांड नेम होगा। राइट मैम। थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, इसी से एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे स्टार्टअप है एक पंचकुला में जो स्पाइसेस से रिलेटेड है, जिनका नाम HPM है, एंड देयर आर अदर स्टार्टअप्स आल्सो जो फूड से रिलेटेड हैं। फरीदाबाद में है, जैसे आकाश ने मेंशन किया है, क्रिस्टल क्रिएशन है, चोको क्लॉक, मतलब दो दे मेक हैंडमेड चॉकलेट्स। सो मैम, इनके लिए आई मीन व्हाट डू यू सजेस्ट कि वो किस तरीके से अपने मार्केट को एस्टैब्लिश करें? सेम, आई थिंक क्वेश्चन इज सेम। उसमें आपको नेटवर्किंग तो बिल्डअप करनी ही है। इट्स भारत लाइट यू आर सेइंग। यस, भारत लाइट भी पूछ रहे बिना किसी सोर्स के ब्रांड कैसे बनाए। बिना किसी सोर्स के ब्रांड कैसे बनाए, वो तो आपको देखो, ये सब चीजें बहुत धीरे धीरे होती है। अभी आप इतनी ज्यादा वरेड हैं, मतलब इन द बिगनिंग ही आप स्टार्टअप्स हैं, आप इतने ज्यादा वरेड हैं इन द बिगनिंग ही, तो इस तरह नहीं होगा। आप अपना काम कीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए, अपने आप धीरे धीरे आपका नाम होगा, अपने आप नेटवर्किंग बनेगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना, जब मैंने अपना फूड बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं थी। मैं इसके लिए भी प्रिपेयर्ड थी कि मुझे 0 ऑर्डर भी आ सकता है, हो सकता है मुझे कोई ऑर्डर भी ना दे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उसको शट कर दूंगी उसके बाद। नहीं, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, मतलब आप ट्राई करते जाइए अपनी तरफ से। धीरे धीरे अपने आप ही आपको आपके सामने सब रास्ते खुलते जाएंगे और आप सब कुछ कर पाएंगे। अभी इतनी बिगनिंग में अगर आप इतना सोचेंगे कि अभी आपका नेम हो जाए और अभी आप फेमस हो जाए, उठते ही सडनली यू वेक अप एंड यू आर फेमस, यू हैव अ गुड ब्रांड एंड गुड नेम इन द सोसाइटी, नहीं, नहीं होगा। धीरे धीरे ही होगा। पहले आप अपना, यू हैव टू विन हार्ट्स ऑफ योर फैमिली, देन यू हैव टू विन हार्ट्स ऑफ योर सोसाइटी, देन यू हैव टू विन हार्ट्स ऑफ योर सिटी। धीरे धीरे करके आप उसको एस्टेब्लिश कीजिए, उसकी चिंता मत करिए अभी आप बिल्कुल भी। Very well said, ma'am. Very well said. So, win the hearts of your friends, families, city, then your country. अभी तो मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ ही सफिशिएंट है। अभी तो आप बिल्कुल बता के ही सबको ले सकते हैं ऑर्डर्स अपने। बिल्कुल बिल्कुल. So, a very good message from Sheetal ma'am today. Another key takeaway was that कि ब्रांड की आप चिंता ना कीजिए, ब्रांड तो खुद ब खुद बन जाएगा जब आप धीरे धीरे कस्टमर्स को एक्वायर करना स्टार्ट करेंगे, अपने कस्टमर्स को खुश करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका ब्रांड अपने आप बन जाएगा. वेरी नाइस. सो मैम, अंकित पूछ रहे हैं कि मैम आपका कोई क्लाउड किचन है क्या? नो, आई डोंट नीड दैट। क्लाउड Okay. किचन अभी मेरा नहीं है, क्योंकि अभी मेरा विद इन मुंबई ही नेटवर्क है एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स है, तो मुझे कभी नीड भी नहीं लगी ऐसी, क्योंकि मेरा यहाँ पे मुझे अच्छा ऑर्डर्स अभी डायरेक्ट ही मिल रहे हैं, तो मैं अपना डायरेक्ट ही उस तरह से कर रही हूँ, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। Great, great. So, any other questions from the audience, from the members who are there? So, ma'am, what's your business? Oh, Ankit, I think you joined us late. Ma'am has already told. So, ma'am, My would you like business to is tell him food again? cravings. So I deliver food, home cooked food. Ankit, I deliver home cooked food, and that I prepare at my home. I have a team for it, and I'm delivering at others' doorsteps, taking Great. pre-orders of that.
Very nice. So I hope that's Ankit, that's clear. Yes. So any other questions? Great. Thank you तो so मैम much. एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टोरी भी बता दूं. एक्चुअली अंकित बार बार ये क्यों पूछ रहा है, ये भी हमारा पंचकुला सेंटर से एक स्टार्टअप है जिसने फूड का ही स्टार्ट किया था, बट यू नो ही गॉट लिटिल डीमोटिवेटेड and then he didn't work out on that. So I think he's asking you again and again this question. So अंकित, आपने किस उसमें किया था फूड का, क्या आपका? अंकित, if you can unmute yourself, you can interact. देखिए ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, इसको ज्यादा इंटरैक्टिव बनाइए. मैंने आज इसीलिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई हैं. So please make it more interactive. Ankit, yes. So he's saying, ma'am, cloud kitchen. Cloud kitchen में, okay. Yes. So ma'am, he was actually ये कॉलेज में हमारे इंक्यूबेटर में ही he was starting. मतलब इन्होंने अपनी पैंट्री बनाई थी and he was going to deliver various food, yes, items. So okay, somebody from the chat, Kiran Chimoli, asked, ma'am, did you need any license for starting this venture from the home? Yes, we always need license for that. Yes. Because उसके बिना तो it's very difficult. License is necessity. See, so it's really clear that बिना लाइसेंस के तो देखिए आज की डेट में कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस करना बहुत मुश्किल है. So yes, the follow-up question is FSSAI. तो मैम आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि आपने कौन सा लाइसेंस लिया हुआ है? लाइसेंस मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन, क्योंकि मैंने भी अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है एंड माय लाइसेंस विल आल्सो कम. Okay, great. FSSAI. Yes, FSSAI license required. This is to all the startups who are listening and who will be listening the recorded sessions, that it is a compulsion that अगर आप फूड से रिलेटेड कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो प्लीज आप FSSAI लाइसेंस जरूर अपना रजिस्टर कीजिए, because that gives a guarantee that your food is harmless and that is going through some kind of procedure. Yes. So ma'am, okay, so we can start now and we will apply for that after some time? Question mark. You should apply it today only. You can go ahead online also. I've done the same online. मैम इनका क्वेश्चन ये है कि पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन. साइमल्टेनियसली आपने जैसे अब स्टार्ट कर लिया है ना, जैसे मैंने भी अब स्टार्ट कर लिया था, तो मुझे भी नीड लगी, तो मैंने अपना जैसे जैसे आपको एक्सपेंड करना है तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे कभी भी, तो इट्स लीगलाइज्ड, तो आपको वो चाहिए ही चाहिए, आपको साथ के साथ अप्लाई कर देना चाहिए. राइट. सो यस, तो जिन्होंने भी चैट बॉक्स में किरण आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका ये आंसर है. मैम कह रहे हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जब भी इस चीज को करें आप साइमल्टेनियसली इसको रजिस्टर भी कर लें, ताकि आपको एक्सपेंशन में, आपको ग्रोथ करने में मुश्किल नहीं आए. राइट. ओके. So yes, any other questions from the audiences? Please ask. देखिए बहुत ही casual एक interactive session चल रहा है and ma'am is giving very good answers. Okay, got it, ma'am. Thank you so much. Thank you. So any other questions? We are here to answer your questions. If so anyone, which is your best seller? Which food is your best seller till now? Food cravings का best seller कौन सा है? I am famous for my राजमा चावल, because मुझे उसके इतने रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं कि मेरे घर वाले बोर हो चुके हैं कि मम्मा प्लीज बाकी और कुछ भी फूड बना लो, राजमा चावल मत बनाना. Like that. Okay. And ma'am, why do you think that is the best thing you are getting repeated orders? I don't know, means उनको टेस्ट तो अच्छा लगा. They are saying that बिल्कुल वो अपना जैसे होता है ना पंजाब का, नॉर्थ का, तो those who are North Indians here, they are regularly asking for that. कि अब मैं बाकी, I told you कि मेरा मेन्यू एकदम डिफरेंट रहता है for the day. Like if I am preparing कड़ी चावल on Thursday, तो मुझे उस दिन भी मैसेज आता है, कॉल्स आते हैं, प्लीज रिपीट द ऑर्डर ऑफ राजमा चावल. तो मुझे वो इतना फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है so that everyone should be happy. Great. So ma'am, Ankit again asks questions. How much margin do we have to take in the food industry?
मार्जिन लाइक मुझे तो अच्छा मार्जिन मिल जाता है, बिकॉज इनिशियली तो ये होता था कि प्लेट्स लाइक दे वर नॉट टू मच, मीन्स ऑर्डर्स वर लेस, बट अब Okay. ये है कि बिकॉज एरिया भी इंक्रीज हो गया एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैव आल्सो इंक्रीज, तो मेरा जो अब मार्जिन है अच्छा इंक्रीज हो गया, तो योर रेवेन्यूज आर मोर, सो नाउ Right. आई एम एंजॉयिंग इट। तो वो यही होगा स्टार्टिंग में, इनिशियली तो आपको भी मतलब क्या मिलेगा कितना मिलेगा यू नेवर नो, वो आपको धीरे धीरे एस्टिमेट लगाना होगा। आई गिव यू वन मोर टिप, आई हैव डाउनलोडेड वन ऐप विच यू कैन ऑल्सो डू, जो ऑनलाइन करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, दैट इज शेफ बडी। दिस इज फॉर ओनली फॉर दोज हु आर हैविंग फूड बिजनेस। इफ यू Right. विल डाउनलोड योर शेफ बडी ऐप, यू कैन नोट डाउन समवेयर, देन यू डोंट नीड टू वरी, आपका सारी कैलकुलेशन सब रिकॉर्ड्स उसके अंदर मेंटेन होते जाएंगे और आपको अपने मार्जिन का पता चलता रहेगा, जैसे आप कह रहे हैं ना, तो आप उसका आराम से वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से चलना है। आपको सब कैलकुलेशन जो आप मैनुअली कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, जिसके यस शेफ बड़ी ऐप, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन ट्राई दैट, आई एम डूइंग दैट वे। ग्रेट मैम, ग्रेट। सो गाइस, जो भी फूड टेक में है, जो भी फूड रिलेटेड डोमेन में है, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो शेफ बडी ऐप है जहाँ पे आप सारे कैलकुलेशंस सब कुछ उसमें कर सकते हैं। तो मैम, ये जो शेफ बडी है, ये स्पाइसेस वाले स्टार्टअप भी रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ओके, एनी स्पाइसेस प्रोडक्ट वाले। फूड से ओके, रिलेटेड कुछ भी है आप कर सकते हैं। ओके, ओके। सो कविता, दैट इज दिस इज वेरी आल्सो हेल्पफुल फॉर ऐप। यू। इफ आपकी कैलकुलेशंस कई बार गड़बड़ हो जाती है। सॉरी मैम, आपको कट किया। हाँ जी, बोलिए प्लीज, नो नो कंटिन्यू। गो अहेड। हाँ जी। एंड इट्स इजियर, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है टू रीच टू योर कस्टमर्स ऑल्सो, क्योंकि उनके पास ओके, भी एक उचित बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ आप लोग ऑर्डर्स ले सकते हैं। very nice, very nice. So this is a good insight, guys. One more key takeaway for today कि आप जो भी फूड रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, वो शेफ बडी करके एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आप उसमें सारी कैलकुलेशंस, उसमें सारी चीजें नोट कर सकते हैं। ग्रेट. So एग्जैक्टली। any other questions from the startups? So ma'am, we have another startup, Amarjeet Kaur. She has a pottery startup, अमृत धरा। तो वो अभी पहले शी वॉज इनटू द प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट अपने पॉटरी प्रोडक्ट्स, अपने टेरेकोटा प्रोडक्ट्स शी वॉज ओके, मेकिंग। वेरी शी इज अ गुड वेरी गुड। पॉटर. Yes. ओके So, गुड। ma'am, हम अभी she has started, she has pivoted a little, and she is going to start with the service, जैसे आपने बताया था, teach करना. तो ओके उसका जो फर्स्ट वर्कशॉप है, दैट इज ऑन 2nd April 2022. इट्स अ सैटरडे. एंड तो वंडरफुल, मैम, ऑल द बेस्ट उनको फॉर आप दैट। कोई टिप, यस, आप उनको कोई टिप देना चाहे? अमरजीत, इफ यू आर देयर, प्लीज कुड यू अमरजीत, अनम्यूट योरसेल्फ? शी इज मैम, अमरजीत। यस, यस अमरजीत कौर. अमरजीत, आप बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं। मैंने तो सबसे पहले यही बोला है कि आप सर्विसेज साथ जरूर दीजिए, दैट हेल्प्स यू अ लॉट टू सेल योर प्रोडक्ट। आपने देखा होगा देयर आर मेनी पार्लर्स, मेनी सलून्स, what they यस. do, they are giving their services and they are keeping their products also beside them to sell. That helps them. सेलिंग तो हो ही रही है प्रोडक्ट की और साथ साथ वो सर्विस से भी अर्न कर रहे हैं, तो ये तो डबल हो गया ना, डबल अर्निंग हो गई आपकी। दिस इज वेरी गुड थिंग विच यू आर डूइंग, गो अहेड फॉर दैट। मैम, तो आप कोई टिप देना चाहेंगे उनको, मतलब क्योंकि इट इज अ फर्स्ट हैंड ऑन, मतलब शी इज गोइंग टू टीच फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप कोई टिप देना चाहेंगे, बिकॉज यू आर एन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर? यस, गो फॉर ओनली वन थिंग, डोंट टीच फॉर वैरायटी इन द बिगनिंग। अभी ये मत सोचिए क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। समटाइम्स थिंक कि हम ये वाला स्टाइल भी सिखा दें टेराकोटा का और ये भी सिखा दें, ये भी सिखा दें। नहीं, ऐसे नहीं करना। अभी बिगनिंग में गो फॉर ओनली वन थिंग, अभी धीरे धीरे आप उसको बढ़ाना। अभी आप सिर्फ एक टेक्निक सिखाना, कोई एक टेक्निक आप चूज कर लीजिए जिसमें आप बेस्ट हैं, आपको वो फर्स्ट है वही टेक्निक सिखानी है। एंड स्लोली स्लोली धीरे धीरे आप उनको बता सकते हैं कि आप ये भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं, एंड देन यू कैन मूव ऑन। So thank you, ma'am. Thank you so much for giving us such wonderful session. It was really inspiring. You're always welcome, always welcome. Rather, I should thank all of you. You have also taken out your precious time for me. You're listening me, and I hope you'll implement, and maybe it will be helpful for you.
And you see, these startups, they are future of our country. So if they will remember me that once we heard all this and we learned this from Sheetal ma'am, then it's great for me also. No, ma'am, I'll definitely share your contact with them. Yes. Good luck to everyone, each and everyone. And very, very thankful to you, Tanushri, the way you have conducted the session. And you are helping them so much. I must appreciate you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Ma'am, we are getting all the applause from the audiences also. Very informative session. Thank you. Thank you, ma'am. So much insights of the business. So, ma'am, I am really thankful today that you have taken out time. आपने इतना precious time. I know how important, because जब भी आपसे बात होती थी, and I'm really apologetic that we did this after so long. We were planning from last December. Yes, but I'm really happy that. Yeah, but ma'am, I would really love कि अगर आप थोड़ा सा personal time भी अपना निकाल के कभी-कभी students को, जैसे I could connect. I'll take that opportunity on this platform itself to take that opportunity कि आप थोड़ा time निकाल के अगर इसी तरह से 1-to-1 भी कर सके, so our kids would be really happy and they will be fortunate to get. I would like to tell my young budding entrepreneurs that I am connected to Haryana only. Here we are only for job. My husband's job is here. That's why I'm in Mumbai. Otherwise, I'm connected to Panchkula only. My house is in Panchkula. And my all studies, everything has been done from Panchkula, Chandigarh, like that. Great. So I am, means a person, a resident of your city only. So I'll definitely come there. I keep on coming there. I stay there. Then I'll meet you guys. I'll come to SSCC and meet everyone personally. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for your precious time, ma'am. Thank you. Thank you. So, thank you, everybody. Thank you, audience, for being such a wonderful audience and hearing ma'am out. And I hope कि आप लोग आज बहुत सारे key takeaways लेके जाएंगे अपने साथ and इनको अपने अपने startups में, अपने अपने business ideas में implement करना चाहेंगे. And कोई भी problem होती है, कोई भी query होती है, आप लोग हमसे connect कर सकते हैं. I am heading the center at Panchkula. You can come over Government College Sector 1 Panchkula में. And बाकी जितने भी अलग-अलग सेंटर से सभी हमारे साथ जुड़े थे, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर हेड से कोई भी क्वेश्चंस होता है, कोई भी क्वेरी होती है related to your startups, related to your businesses, you can always connect with us. Thank you, Sheetal ma'am. Thank you so much. And I'll be ending the session. Yeah. Great knowing. Bye for now. Bye. Have a nice day.